आज के बाल भजन संध्या कार्यक्रम में आर्य समाज, आर्यवीर, वीरांग नदल अजमेर राजस्थान, जय गुरुदेव चैरिटेबल तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु की तरफ से आप सबका स्वागत है। இன்றைய பால் பஜன் சந்தியா நிகழ்ச்சியில் आर्य समाज, आर्यवीर, वीरांग नदल अजमेर राजस्थान, जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई की तरफ से आप सबका स्वागत है। எல்லாருக்குமே வணக்கம்। आज पहले हम गायत्री महामंत्र का जाप 3 बार करेंगे। முதலில் 3 தடவை गायत्री महामंत्र जाप கடவுளை வந்துட்டு நம்மள நல்ல பாதையில் கொண்டு போகணும்னு प्रार्थना। हम गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अच्छे मार्ग पे चलने के लिए प्रोत्साहित करे, ताकि हम जिंदगी सही मायने में जिए। सो सब आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। எல்லாரும் மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க 3 தடவை गायत्री महामंत्र பாடலாம்। எல்லாருக்கும் உங்க குரல் கேக்குற மாதிரி இருக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம்। ஓம் பூர்புவஸ்வः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सब अपना अपना माइक म्यूट पे रखिए। नए वर्ष का, नए कैलेंडर ईयर का ये पहला बाल भजन संध्या कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम में हम शुरुआत करेंगे 2 महान हस्तियां हमारे तमिलनाडु में पैदा हुई, जिन्होंने हमारे भारत माँ के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, अपनी जान की बाजी लगा दी। तो नए साल इस 2 पराक्रमी महारथी, जो भी हम कहें उनके लिए लफ्ज कम है, उनकी एक श्रद्धांजलि करेंगे और उनके जीवन पे एक जो वीडियो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। छोटा वीडियो है। இன்றைய 2023 முதல் பால் பஜன் சந்தியா ப்ரோக்ராம் நடக்குது। சோ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த தமிழ்நாடு மண்ணில் பிறந்த 2 பெரிய தலைவர்களும் சொல்ல முடியாது, ராஜா ராணிங்க। அவங்க பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தை எதிர்த்து போரிட்டாங்க। அந்த போர்ல அவங்களோட உயிர் கூட போனது। சோ இந்த 2 மாமனிதர்கள் நம்ம தேசத்தில் தமிழ்நாட்டுல பிறந்த பெரிய வீரர்களோட வரலாறு பத்தி சொல்ல போறோம், படம் பார்க்க போறோம்। நீங்க யாருன்னு இந்த 2 தலைவருங்க யாருன்னு சொல்ல முடியுமா? सोनू जी आपको पता है? बिंदिया जी हैं और मेरी मदर भी हैं। The question is, who are these 2 great sons of the soil of Bharat Ma, who were born in Tamil Nadu, who gave life, who fought for the prestige and respect of our motherland against the East India Company of Britishers? Who are these 2 sons of the soil? एक तो रानी वेलू नचियार, दूसरा आके वीरा पांड्यन कोटा बोमन। वीरा पांड्य केट्टा बोमन उतना चाहिए। वीरा पर देखा
ராணி வேலு நாச்சியார் वीरपांड्य केट्टबोमन। वेलू नाचियार रानी जी रामनाथपुरम से मेरे ख्याल से शिवगंगा जो है वहां पे उस देश की वो रानी थी और करीबन रानी लक्ष्मीबाई से ये माना जाता है कि 100 साल पहले आई थी। So she is the first lady revolutionary, first queen to fight the Britishers। तो पहले हम इनका एक फोटो दिखाएंगे, इस दोनों महारथियों का। जितना भी इसके इनके बारे में बोले कम, क्योंकि हमारे देश की इज्जत के लिए उन्होंने अपने जिंदगी की बलिदान दे दी। இந்த ரெண்டு மனிதர்கள் மாமனிதர்கள் நம்ம நாட்டுல தன்னோட உயிர் பலி வச்சுட்டு நம்ம நாட்டோட பெருமைக்காக அவங்க உயிர் கொடுத்தாங்க। ராணி வேலு நாச்சியார் and வீரபாண்டிய கெட்டபொம்மன்। ராணி வேலு நாச்சியார் வந்து against the Britishers, East India Company, the first lady queen to raise revolt। அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் சண்டை போட்டாங்க। அதுக்கப்புறம் தான் 100 வருஷம் பிறகுதான் ராணி லக்ஷ்மிபாய் வந்தாங்க। அண்ட் கொஞ்சம் வருஷங்கள் அதுக்கு அப்புறம் வேலு நாச்சியாருக்கு அப்புறம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கூட வந்தார்। வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஒரு இந்த ராணி வேலி நாச்சியாரோட போஸ்டல் ஸ்டாம்ப் கூட வெளியிட்டாங்க நம்ம பாரத கவர்மெண்ட்। சோ வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் 3rd January 1760 to 16th January 1799। At the age of 39 our British East India Company தூக்குல போட்டுங்க। they hung him in public because he refused to pay them tax। they hung him in public and Rani Velu Nachiyar lived a longer life। she fought the Britishers with the support of Hyder Ali, the father of Tipu Sultan, who was immensely impressed by the 7 languages that this Rani of ours knew, including Urdu। she fought successfully the British East India Company and recovered her Sivaganga fort, and she ruled for 10 years, and in the year 1796 she passed away। so हम इन दोनों एक पहले पिक्चर एक वीडियो देखेंगे। एक मिनट। முதல் சுதந்திர போராட்ட வீரர் என்று யாரை குறிப்பிடுவார்கள் தெரியுமா? வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் சரியான பதில்தானே? ஏன் தயங்குற? இப்பொழுது நாம் சில புகைப்படங்களை பார்க்கலாம். வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பாஞ்சாலங்குறிச்சியின் சிற்றரசர் ஆவார். இவருக்கு ஊமைத்துறை குமாரசாமி என்று 2 சகோதரர்கள். அந்த காலகட்டத்தில் தமிழ்நாடு ஆற்காடு நவாபின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருந்தது. ஆங்கிலேயர்களிடம் நிறைய கடன் வாங்கியிருந்தார் நவாப். கடனை திருப்பித் தர முடியாததால் சிற்றரசர்களிடம் வரி வசூலிக்க ஆங்கிலேயர்களுக்கு அனுமதி தந்தார் நவாப். ஓ, அப்படித்தான் ஆங்கிலேயர்கள் நம்மை அடிமையாக்கினார்களோ? ஆமாம், எல்லா சிற்றரசர்களும் வரி செலுத்தினாலும் கட்டபொம்மன் மட்டும் எதிர்த்தார். ஆங்கிலேயர்கள் பல வழிகளில் வரி வசூலிக்க முயன்றும்
முடியாமல் போயிற்று. அப்போது ஜாக்சன் என்பவர் திருநெல்வேலிக்கு ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். 18/8/1798 பாளையங்கோட்டைக்கு வந்த ஜாக்சன் கட்டபொம்மனுக்கு கடிதம் எழுதினார். அன்புடன் எழுதிய கடிதத்தை கண்ட கட்டபொம்மன் ஜாக்சன் துரையை சந்திக்கச் சென்றார். ஆனால் கட்டபொம்மனை அலக்கழிக்கும் விதமாக ஜாக்சன் பல ஊருக்கு சென்றான். கடைசியில் ராமநாதபுரத்தில் சந்தித்தனர். ஆனால் ஜாக்சன் வரியை பற்றி மிக கடுமையாக பேசினார். கைது செய்யவும் சதி நடந்தன. ஆனால் கட்டபொம்மன் அங்கிருந்து தப்பினார். பகை அதிகமானது. இருப்பினும் ஆங்கிலேயர்கள் பணிந்தனர். காரணம் கட்டபொம்மனின் பலமும் வீரமும். 1799 பாஞ்சாலங்குறிச்சி மீது படையெடுத்தனர் ஆங்கிலேயர்கள். நவீன ரக பீரங்கி போன்ற ஆயுதங்களுடன் போரிட கட்டபொம்மன் தோற்றார். கட்டபொம்மனும் அவர் தம்பியும் தப்பித்தனர். கட்டபொம்மனை உயிரோடனோ அல்லது பிணமாகவோ கொண்டு வருபவருக்கு 1,00,000 பரிசு. புதுக்கோட்டையில் எட்டப்ப நாயக்கன் நயவஞ்சகமே கட்டபொம்மனை காட்டிக் கொடுத்தது. தஞ்சம் தருவதாக கூறி காட்டிக் கொடுத்தனர். ஆயுதம் இல்லாத நிலையில் சிறைப்பிடித்தனர். 1799 அக்டோபர் 16 ஆங்கிலேயர்களால் கயத்தாறு என்ற இடத்தில் உள்ள புளிய மரத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டார். எதற்காக புளிய மரத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டார்? காரணம் கட்டபொம்மனின் தண்டனை மக்களிடம் பயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பொது இடத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டார். इसको दिखाया गया है just for people who don't follow Tamil very closely. Very small but very sweet movie. वीरपांडे कट्टबोमन पल्लानकुरिची पंचलानकुरिची जो तूतुकुड़ी जो हमारा तमिलनाडु में तूतुकुड़ी है, मेरे ख्याल से सदर्न मोस्ट टिप पे जहां पे पोर्ट भी है. तो पंचलानकुरिची के राजा थे. At the age of 39 he was hung to death in open public by the Britishers, East India Company, क्योंकि उन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया. और ब्रिटिशर्स ने इनको पब्लिक में क्यों हैंगिंग किया? ताकि इनकी मौत देख के और कोई साहस न करे कि उनके विरुद्ध कोई सर उठाए. तो ये था हमारा वीरपांडे कट्टबोमन की वेरी शॉर्ट एंड स्वीट story of life. The reason we are raising this great legendary son's life is that we should not forget the sacrifices of our legendary ancestors. ठीक है? थोड़े टाइम के बाद we will see Rani Velu Nachiyar's movie. Now we'll request Sonu ji to please. We'll request of my mother Rajni Ramchandji to narrate that Hari Om Namo Narayan Jap. Sing, man. Hari Om Namo Narayan. Yeah, one second. Yes. Namaste everybody. Hari Om Namo Narayana. 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 Hari Om Namo
नारायण हरि ओम नमो 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 नारायण। कैलेंडर के नए साल में उस परमात्मा का नाम उनके धुनी से हम शुरू करेंगे, तो इसीलिए पहले भजन ना गाते हुए धुनी से शुरू किया। अब रिक्वेस्ट करेंगे सोनू जी किसे कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। झूले झूले लाल दमस्त कलंदर सेवण दी सरकार दमस्त कलंदर सेवण वाला पीर सदा मेरे बसया दिल ने अंदर। झूले झूले लाल दमस्त कलंदर दमस्त कलंदर चार चराग तेरे बरन हमेशा पंजवा में बारंग आया बाला झूले लाल सेवण दा शिरडी दा शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर शकी साहब अली दम दंदे अंदर ओ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लाल सेवण दा की शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर आयो लाल झूले लाल आयो लाल झूले लाल तेंजा थींदा बेड़ा पार लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल भले वारो झूले लाल गोरे वारो झूले लाल बाल भजन वारो झूले लाल लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल लाल झूले लाल लाल झूले लाल बेड़ा पार अरे जेको चोंदो झूलेलाल तीजा तीजा बेड़ा पार। तो अब मैं बहुत अच्छा था भजन। तो साल की शुरुआत से झूलेलाल साईं के भजन से आपने की, वेरी गुड। बिंदिया जी तई भजन गायो था और ओके ईना जी आते ही गायो तई भजन थिंक शी इज पहले गाओ। कौन मैं गाऊं? सुनाई देता है? सुनाई देता है? हाँ सुनाई देता। बिंदिया जी गायो गायो इकरो ईना जी इकरो मिनट गायो गायो। हाँ शिवजी शक्ति दो शांति का दान दो, शिवजी शक्ति दो शांति का दान दो। शिव 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 जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो। शिवजी शक्ति दो शांति का दान दो। तू ही माता पिता है जग में, तू ही माता पिता है जग में, गुरुदेव सदा है संग में, तू ही गुरुदेव सदा है संग में। सत्य का सहारा दो, सत्य का सहारा दो, शिवाजी शक्ति दो शांति का दान दो। शिवाजी
शक्ति दो, शांति का दान दो, अंत अनाथ निरंजन, तुझे अंत अनाथ निरंजन, तू मेरे गुण सबन दुख भंजन, तू मेरे गुण सबन दुख भंजन, ज्ञान का अंजन दो, ज्ञान का अंजन दो, शिवजी शक्ति दो, शांति का दान दो, आत्म ज्ञान की निष्ठा बढ़ाओ, आत्म ज्ञान की निष्ठा बढ़ाओ, निष्काम भक्ति सेवा कराओ, निष्काम भक्ति सेवा कराओ, हृदय को साफ करो, हृदय को साफ करो, शिवजी शक्ति दो, शांति का दान दो, जय शिव शंकर भोलानाथ, जय शिव शंकर भोलानाथ, कैलाशपति तुम सबका साथ, कैलाशपति तुम सबका साथ, सारी सृष्टि तेरे हाथ, सारी सृष्टि तेरे हाथ, शिवजी शक्ति दो, शांति का दान दो, शिवजी शक्ति दो, शांति का दान दो, शिव 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 शिव, जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो, शिव जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सलितं नमामि, भवं भवानी सलितं नमामि, भवं भवानी सलितं नमामि। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। अब आप रिक्वेस्ट करेंगे हीना जी को कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। हरिओम। हरिओम। दुनिया में आके बंदिया, भूला तू अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने बहार है, दुनिया में आके बंदिया, वादा गर्भ में था किया, भूलूंगा तुझे को ना हरी, फंस के मोह जाल में, भूला तू अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, दुनिया में आके बंदिया, जिस हरि ने जन्म दिया, उसका कभी नाम लिया, जिससे प्रीत लगा रहा, कोई ना मददगार है, तेरे लिए भगवान कैसी है, तेरे लिए कैसी
पिया भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करना प्यार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है दुनिया में आके बंदिया लाखों हरि उपकार किए भक्तों के बेड़े पार किए सच्चे मन से जो याद करे होता वो मददगार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है दुनिया में आके बंदिया भूला तू अपना करार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है हरिओम 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 हरिओम। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूं हिंदी में। नए साल कैलेंडर ईयर की शुरुआत है। आइए हम उस ऊपर वाले जिसने हमें जन्म दिया उसकी मेहरबानी को माने, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि 98% जो भी इस धरती पे इंसान जी रहे हैं उनके मुकाबले में हम बहुत सुखी और खुश हैं। 98 नहीं बल्कि 99.8% मालिक ने हमको सब कुछ दिया जो बहुत इंसानों को नहीं दिया। तो आइए उसकी मेहरबानी उसकी रहम को मानते हुए गुरु महाराज श्री सुधांशु जी का भजन, बहुत प्रिय भजन, जब वो गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद रखता हूं कि आपको भी ये भजन अच्छा लगेगा। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का ये माना के दाता हो तुम कुल जहां के, मगर जैसे झोली फैलाऊं मैं आके। ये माना के दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का तुम्ही ने अदा की है मुझे जिंदगानी। तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। तुम्ही ने अदा की है मुझे जिंदगानी। तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। कर्जदार तेरी दया का इतना ये कर्जा
चुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मैं, मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया, जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया, गुनाहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मैं, मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का यही मांगता हूँ मैं, सिर को झुका लूं, तेरा दीद इस बार जी भर के पालूं, यही मांगता हूँ मैं, सिर को झुका लूं, तेरा दीद इस बार जी भर के पालूं, सिवा दिल के टुकड़े के ए मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं चबाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का। धन्यवाद, धन्यवाद। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। अब 7:30 बज गए हैं, तो बस we'll see that movie of Rani Velu Nachiyar, और फॉर इंफॉर्मेशन 4 जनवरी से 8 जनवरी आफ्टर कोविड फर्स्ट ईयर वो कर रहे हैं। आर्य समाज चेन्नई जो गोपालपुरम डीएवी स्कूल में फंक्शन होता है कि वहां पे महागायत्री महायज्ञ करते हैं।
तो अभी मैं आगे आऊं माइक्रोफोन से, 1 मिनट। तो रानी वेलु नाचियार, 1 मिनट। When was the first Indian queen to fight against the British from? Option A, Uttar Pradesh. Option B, Tamil Nadu. Option C, Gujarat. And option D, Karnataka. The first queen to fight against the British was from Tamil Nadu. History books might tell you something different, but the truth is very different. The first Indian queen to fight against the British and to win is Veeramangai Velu Nachiyar, the brave Velu Nachiyar. The British, led by the son of the Nawab of Arcot, killed Velu's husband Muthu Vadaganatha Devar in Kalayarkovil, but Velu Nachiyar managed to escape with her daughter. Impressed by her valor and intellect, Hyder Ali, Sultan of Mysore, decided to help her. She travelled and reached out to the other kings and garnered their support. She spent several years in hiding, moving from one fort to another, and waited for the right time to wage war. Velu Nachiyar was a warrior who was well trained in Balari, Silambam, sword fighting, throwing spear, archery, horse riding, and elephant riding. And for the tigress in hiding, the right time had come. In 1718, Velu Nachiyar led an army of 5,000 to fight against the British and the Nawab of Arcot. Yes, she defeated the superpowers. Interestingly, she was fluent in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Urdu, French, and English. That's 7 languages. And one more important thing to note is that she was 50 years old when the war came to an end. Also, the first woman martyr in Indian history was from Velu Nachiyar's army. Coeli destroyed the armory of British army. She jumped into the armory, dosed in ghee, and set fire to herself and the weapons stored there. Her courage and sacrifice played a crucial role in winning that battle. Nachiyar recaptured her husband's kingdom from East India Company and ruled it for another 10 years. In 1780, she delegated authority to her daughter and the Marudu brothers to assist with the administration of the kingdom. Her daughter, Vellachi, inherited the throne in 1790. Throughout history, Rani Lakshmi Bai is portrayed as the first woman to fight against the British. But Velu Nachiyar was born precisely 100 years before Rani Lakshmi Bai. Resistance was cut, revenge was taken, and the battle for independence had begun, way before we know it from our books by समझा? समझ लेना. तो दोनों पिक्चर, दोनों मूवी अच्छी लगी? It's good? Yes? Yes. It is more than अच्छी लगी. ये 2 हमारे पूर्वज हैं, इनका नॉलेज भी हमें मिला. तो जैसे आपको बोल रहा था कि ये गायत्री महायज्ञ जो आर्य समाज करते हैं हर साल, कोविड के बाद पहली बार कर रहे हैं. उनके आचार्य, आर्य समाज के आचार्य जो भी बोलते हैं वो हैं बहुत रिलीजियस और ज्ञानी, लेकिन आर्य समाजों के आचार्यों की एक विशेषता है कि वो साइंटिफिकली किस बात को एक्सप्लेन करते, वो किसी पे थोपते नहीं है. और कल बता रहे थे कि आज नया साल शुरू हुआ है, कैलेंडर ईयर, तो आप सब प्रतिज्ञा लेंगे कि आप नॉनवेज छोड़ोगे. और अगर नॉनवेज छोड़ने का है, या अगर वो बोल रहे थे कि नॉनवेज छोड़ो, ये हमारे ग्रंथों में, हमारे रिलीजन के अनुसार अच्छा नहीं, अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगा तो आप नहीं मानोगे. बट साइंटिफिकली आई विल show you that why a human being should always eat vegetarian food and not non-vegetarian food. आज एक्चुअली
बिंदिया जी के घर गया था सुबह को, तो उस पे डिस्कशन हुआ था। फिर भी शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा, सोनू जी आपको भी पता है, लेकिन ये रिवीजन रहेगा। आप वेज हो या नॉन वेज हो? वेज हो ना? मैं तो प्योर वेज हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। और आज सुबह को बता रहे थे कि भगवान और ईश्वर, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, तो ये 2-3 मिनट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, जो भी मेरे को समझ में आया मैं आपको बताऊंगा। पहले तो वो बोल रहे थे कि जो भी हर्बीवरस हैं, जो घास खाते हैं, जैसे कि हमारे हॉर्स हैं, बकरी है, गाय है, और जो कार्निवरस हैं जैसे कि कुत्ते हैं, बिल्ली है, लायन, टाइगर है, हम किस श्रेणी में आते हैं? वो दूसरे ओमनीवरस, जो दोनों खाते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेज, जैसे कि हमारे भालू है, ठीक है। तो बोले मैं अगर आपको बोलूंगा कि मालिक ने आपको ऐसा, आपके शरीर को ऐसा बनाया कि आप नॉनवेज खाना आपके सेहत को खराब कर सकते हैं, मैं बोलूंगा नहीं मानोगे अगर नॉनवेज खाते हो तो। लेकिन आपको मैं साइंटिफिकली बताऊं कि हमारे मालिक ने हमें आप नॉनवेज खाने के लिए नहीं बनाए, तो फिर आप हो सकते हैं 10 जनों में से 3 जने मानो। तो पहली बात बोल रहे थे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, हमारे दिमाग में एक ऐसा है, वो बोल रहे थे हाइपोथैलेमस, ऐसा कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा, जो बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करता है, चाहे आप सर्दी में हो या गर्मी में हो, आपको इसका इफेक्ट नहीं होता। एक नॉर्मल इंसान का बॉडी टेम्परेचर वही होता है, अगर थर्मोमीटर डालोगे तो ऐसा ही बताएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसके बाद में बोले कि जो हर्बीवरस एनिमल है, जो मांस नहीं खाते हैं, वो अगर ऑब्जर्व करोगे, गाय, बकरी, जो भी घोड़ा, वो जब कुछ काम करते हैं या थकते हैं, उनका बॉडी का टेम्परेचर ऊपर चढ़ता है, तो वो स्वेटिंग होती है, या गर्मी के कारण भी स्वेट करते हैं। लेकिन ये कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीता, उनको अगर आप ऑब्जर्व करें, शेर, बिल्ली को, चीते को तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे बीच वो नहीं रहते, लेकिन कुत्ते, बिल्ली को हम देखेंगे कि वो स्वेटिंग नहीं करते हैं। आप इसके आप ऑब्जर्व किए होंगे, लेकिन फिर भी आप ऑब्जर्व करो तो ये जो मांस, मच्छी वो सब खाते हैं ना नॉनवेज, वो जानवर स्वेटिंग करते हैं, और जो हर्बीवरस एनिमल, घोड़ा, बकरी, गाय, वो स्वेटिंग नहीं करते, वो स्वेटिंग करते हैं, सॉरी, और जो मांस खाते हैं वो स्वेटिंग नहीं करते। जो घास खाते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो स्वेटिंग करते हैं। तो हम इंसान भी स्वेटिंग करते नहीं करते? स्वेटिंग करते हैं ना। सो वी बिहेव लाइक दोज एनिमल्स who eat only vegetarian food, ठीक है। तो जैसे वेजिटेरियन एनिमल खाता है, वो एनिमल स्वेटिंग होती है, इंसान में भी स्वेटिंग होती है। सो हमारे बॉडी का ऐसे मालिक ने बनाया कि वेजिटेरियन फूड इज सूटेबल। और दूसरी बात बोले कि आप कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो और गाय को देखो, जब वो पानी पीते हैं तो कुत्ता पानी को चाटता है, he licks water, बिल्ली पानी को चाटती है, यानी कि जो मांस खाते हैं। गाय देखो, वो चाटती नहीं है, वो सिप करती है, वो पीती है जैसे हम इंसान पीते हैं, करेक्ट, हाँ या ना। तो पीने का ढंग भी हम जो एनिमल्स हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनकी तरह हमारा पीने का भी ढंग है। तो हमारे को क्या, बॉडी इज बेस्ट सूटेड मैनरिज्म्स फॉर ईटिंग वेजिटेरियन फूड। और तीसरी बात बोले, जब गाय खाती है, उनके दांत देखिए, या बकरी खाती है, या हम इंसान खाते हैं, तो भोजन को चबा चबा के चू करके खाते हैं, करेक्ट। लेकिन ये जो कार्निवरस एनिमल्स है, जो मांस को खाते हैं, उनके जो टीथ है बहुत तेज होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और वो चमड़े को फाड़ के निगलते हैं। दे swallow, they don't digest, they don't chew like a cow, like a horse, like a goat, okay। तो इससे क्या पता चलता है, हम भी क्या है कि स्वॉलो नहीं करते, जैसे वेजिटेरियन एनिमल्स हैं उनकी तरह चबा चबा के खाते। तो इसे क्या प्रकृति
नेचर हमें क्या क्लू दे रही है कि वी आर बेसिकली मेड फॉर ईटिंग वेजिटेरियन फूड बिकॉज आवर मैनरिज्म्स, आवर बॉडी इज मेड लाइक दैट। एंड लास्ट वो बोल रहे थे कि जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स खाते हैं, जो मांस नहीं खाते, हर्बीवरस वेजिटेरियन एनिमल्स, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत बड़ी होती है, ठीक है, और उनकी इंटेस्टाइन पे पैचेस रहते हैं, यानी कि बहुत रफ होता है, समझते हो। और जो कुत्ते हैं और जो चीता है, शेर जो नॉनवेज खाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन बहुत छोटे हैं और उनकी इंटेस्टाइन बहुत स्मूथ होती है, ओके। और जब वो खाते हैं तो तुरंत अनवांटेड जो है उनका जो मल निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इंसान जब खाता है, क्योंकि उसके पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इतनी नहीं है, और मान लीजिए ये हर्बीवरस जो वेजिटेरियन एनिमल्स मांस मच्छी खा रहे हैं, उनके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस होती है, हमारे शरीर में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होती है जो खाने को तोड़ती है, और अगर बहुत कम में है कंसंट्रेशन तो चांसेस है दैट इसमें काफी अनडाइजेस्टेड फूड हर्बीवरस एनिमल्स का जाके इंटेस्टाइन में अटक जाए। और ये भी इंसान के साथ हो सकता है, क्योंकि इंसान के पेट में भी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होती है व्हेन कंपेयर्ड टू नॉन-वेज एनिमल्स वो बहुत कम होती है। तो अगर हम मांस खाते हैं, एनिमल प्रोटीन खाते हैं, तो इतना डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट वेरी कॉन्सेंट्रेटेड व्हेन कंपेयर्ड टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच इज मेड इन द स्टमक ऑफ अ लायन, अ चीता और अ डॉग और अ कैट, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। तो क्या होता है, लॉट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड गेट स्टक टू योर इंटेस्टाइन बिकॉज वहां रफ है, हमारा वेजिटेरियन इंटेस्टाइन रफ रहता है। तो इसमें देखा गया, विद्वान बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं, जो भी इंसान 50 ईयर से ज्यादा होता है, डॉक्टर्स उनको इंटेस्टाइन क्लीन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इट हैज बीन प्रूव्ड 80% रिस्क ज्यादा होता है मैन ईटिंग, जो इंसान नॉनवेज खाता है ना, उसमें रिस्क ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो मांस इंटेस्टाइन में अटक जाता है दैट कैन गिव बर्थ टू कोलोन कैंसर, जो इंटेस्टाइन का कैंसर होता है। तो 50 इयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर सब रेकमेंड करते हैं हर एक को कि क्योंकि आपने इतना मांस खाया है, आप अपने इंटेस्टाइन को क्लीन करो, तो इससे उसको कोलोन कैंसर होने की चांस कम होती है। तो ये जो कल बता रहे थे हमारे आचार्य विद्वान, कितना सही है कि हमारा शरीर, हमारी जो बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज मेड बाय गॉड ओनली सूटेबल फॉर ईटिंग वेजिटेरियन फूड। और ये भी देखा गया है कि आप जैसे खाओगे आपकी मनोवृत्ति वैसी बनेगी। जनरली व्हाट यू ईट विल डिसाइड योर कैरेक्टर एंड क्वालिटीज ऑल्सो। इट इज बीन सीन, जो आदमी मांस खाता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा एग्रेसिव रहता है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है, और उसको फास्ट रिजल्ट चाहिए। वेस्टर्न पीपल आर बेसिकली मोर पेशेंट, इतने एग्रेसिव नहीं रखते। तो जो कल आचार्य बोल रहे थे, आप सबको पता है, तो आप सब तो ज्यादातर वेजी हो, तो ये नॉलेज आपको उनके जरिए, उनका नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, आपको अच्छा लगा होगा। तो आई बिलीव you will also keep it in mind so that you can tell this to people कि आप डिमांड कम करोगे नॉनवेज का तो ऑटोमेटिकली स्लॉटर हाउसेस जो धंधा करेंगे उनको कम हो जाएगा, वो भी अपना धंधा बंद कर लेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्थिति आएगी जो हमारे प्राचीन भारत में किसी एनिमल का, जानवर का कत्ल नहीं होता था, तो वो दिन भी आ सकता है अगर हम ये 3-4 लॉजिक मन में रख के, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो नॉन वेजिटेरियंस को बोले, ताकि उनमें से 1-2 भी मान जाए ना, हमारे हिंदुस्तान में रहने वालों की बात कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक मॉरल विक्ट्री रहेगी कि किसी आचार्य ने हमें 4 जनवरी को बोला था और मैंने आपको वो ज्ञान दिया था और इम्प्लीमेंट करते रिजल्ट आ गया, तो आप सबको कितनी खुशी होगी कि एक इंसान बदला। ओके, कोशिश करेंगे ये पॉइंट्स जारी रहो, और जब भी आपको चाहिए वीडियो देखिए, बुक में नोट कीजिए, आपको पता रहेगा। और दूसरी बात आप बोल रहे थे, टाइम बहुत ज्यादा हो चुके हैं, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, बस 2 मिनट में वाइंड अप करते, कोई जवाब दे।
हु इज ईश्वर, हु इज भगवान? आज का सुबह का डिस्कशन था उनका। कोई जवाब दे? बिंदिया जी, पूर्वज अभी आई हैं, माय मदर, सोनू जी। ठीक है। अक्सर there is a misconception that Ishwar and Bhagwan is the same, but it is not so. Acharya ji was telling, Ishwar means the person who has created the Srishti, nature. He is formless. He is not born on this earth. Nyayakari hai. He renders justice. That is only his job. To give birth to you, you to die, you decide, not he. But he renders justice to you. What you have done, you shall pay. तो न्यायकारी है, वो जिसको जैसे दंड देने का है या इनाम देने का है वो देता है, वो हिसाब रखते हैं। और ईश्वर का कोई भी काम नहीं हो, किसी की सहायता नहीं करते, सबको बराबर दे देते हैं। एक दिमाग छोटा सा, 2 हाथ 2 पैर सब बराबर देते हैं और उनको बोलते हैं कि मैंने आपको सोचने की आजादी दी, कर्म करने की आजादी दी, लेकिन फल पे आपका आजादी चला जाता है, वो मैं दूंगा आपको। तो he was telling Ishwar is somebody who's not born. If he's not born, he doesn't die. He creates the universe and his work is only to render justice, nothing more. He doesn't kill you, he doesn't give birth to you, he doesn't give death to you. Bhagwan is somebody who's got 6 गुण है। 6 गुण मेरे को याद नहीं है, जितने याद आएंगे आपको बताऊंगा। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान श्री राम इस ईश्वर, नहीं, अगर वो ईश्वर होते तो धरती पे नहीं पैदा होते। वो भगवान है, हमारे इष्ट देव हैं। उन्होंने जो काम किया, उनके जो गुण हैं, हर एक, खाली हमारे देश में नहीं, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो गुण है उन पे अमल करके चलना चाहिए। जैसे बल, जिसके पास बल हो वो बलवान है, जिसके पास धन हो वो धनवान है, जिसके पास चरित्र हो चरित्रवान है, जिसके पास भग हो वो भगवान है। ये भग का क्या अर्थ मतलब होता है? भग symbolizes people who have 6 qualities in them are Bhagwan. It can be you, it can be your mother, it can be your neighbor, it can be somebody whom you even don't like, but he might have the qualities. सब 6 क्वालिटी याद नहीं, लेकिन जो भी याद है I'll tell you. एक बोल रहे थे जिसके पास ज्ञान है, 6 क्वालिटी याद रखो। This will help you discriminate between Bhagwan and Ishwar. Bhagwan is not Ishwar, but Ishwar has got the qualities of Bhagwan. Okay? एक है जिसमें ज्ञान हो, जिसको ऐश्वर्य हो, जिसको वैराग्य हो, और 3 गुण याद नहीं आ रहे, वैराग्य, जिसके पास बल हो, जो परोपकारी हो। एक 6 गुण थे, मैं आपको फिर बताऊंगा, गिन एक और दिन मैं ग्रुप में डालूंगा। जिसके पास ये 6 गुण है, वो चाहे आप हो या हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, भगवान श्री राम, वो भगवान कहलाते हैं। जिसके पास आकर्षण हो, आकर्षण हो, जो सभी को अपनी तरफ खींचे। हाँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने लिखा है अपने बुक में, वो डायरी का फोटो काढ़ के मैं आपको बोलूंगा। सो भगवान ईश्वर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कृष्ण परमात्मा का निरादर करते हैं, नहीं। वो हमारे इंस्पिरेशन है, वो युग पुरुष है कि जिंदगी कैसे जी जाती है, वो इसलिए धरती पे आए थे। लेकिन प्लीज लेट अस नॉट कंफ्यूज देम, वो ईश्वर नहीं है, वो भगवान है। ईश्वर में सब गुण है भगवान के, लेकिन भगवान ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी जन्मता नहीं है धरती पे। वो 6 गुण क्या है मैं फिर आपको एक दिन बताऊंगा। और ये जो भी आप डायरी में नोट करते जाओ, मैं भी नोट कर रहा हूं, ताकि 10-15 साल बाद आपको हमेशा याद रहे, आप और दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं। क्योंकि ये ज्ञान जो हमारे आचार्य जी कल और आज दे रहे थे, हमें इतना अच्छा लगा। 1-1.5 घंटे 1-1.5 मिनट की तरह चले गए, इतना जल्दी, इतना मजा आ रहा था। तो आई हैव शेयर्ड माय एक्सपीरियंसेस, एंड जब मैं कल सुबह को जाऊंगा
रिकॉर्ड करके डायरी में रखूंगा, आपको भी बताऊंगा, ताकि आपको भी पता चले कि स्पिरिचुअलिज्म में जो आर्य समाज के जो आचार्य साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं विदाउट फोर्सिंग एनीथिंग ऑन यू, वो किसी पे भी थोपते नहीं है, आपको भी उम्मीद रखता हूं बहुत मजा आनंद आएगा। बिफोर वी वाइंड अप, पूर्वजा वंदिती अम्मा, हैप्पी न्यू ईयर। पूर्वजा, ठीक है, जाने के पहले कुछ कोई बोलना चाहेगा? Anybody wants to say anything before we wind up today's Bal Bhajan Sandhya program? मैं छोटे से गीत के साथ समाप्ति करना चाहूंगा। ठीक है, ओके, गीत के साथ, छोटे से गीत के साथ समाप्ति। जो कुछ है संसार में सो कुछ है संसार, इसी कथा ने कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब कर्मों का परिणाम, विदा ले रहे आपसे करते हुए प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। फिर अगले फ्राइडे को 7 बजे बाल भजन संध्या में मिलेंगे। सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि।